All right, everyone, welcome back to the Data Science Sci-Fi. This is the second day, and we are about to get started. Let me briefly tell you about today's agenda, and then we can get started with it. All right, for today's agenda, we have first we have a talk about careers in data science and what a data scientist does on the job. So you're going to learn a lot in this talk. We have a Google developer expert in machine learning and a brilliant data scientist, Robert John, with us, who is going to share his knowledge with us. After that, I'm going to cover basics of dplyr and ggplot2 packages of R, and I'm going to do a walkthrough of a simple project uh, by which you're going to understand a lot of things about data analytics. And at the end, we're going to have a simple quiz. That's about it for today. So uh, from here, I would like to give it to Robert to introduce himself and enlighten us uh, with the interesting topic that he's going to talk about. Robert, are you here with us? Hello. Yes, I am here with you. Can All you right, hear me great. clearly? Yeah, I can hear you. Okay, Please carry on. perfect. Just a second. I want to try and start my presentation. And okay. Okay, perfect. Hello, everyone. I guess it's pretty late over there. You are a few hours ahead of us. My name is Robert, and I am a Google developer expert for machine learning and for the Google Cloud Platform. And for today, I will be talking about careers in data science. And that's essentially talking about what we do on the job. And I'm excited about this topic because I don't think we talk about it well enough or often enough. Um, Data science is a wide field, and usually people assume that if they're getting into data science, they're only going to be doing one thing, and that thing might be very specific to programming, and so as a result, people get discouraged. But it turns out that data science in itself is a wide field. On the screen right now, I have something that is called the cross-industry standard process for data mining, and it's one of the methodologies for data science. And I like to bring it up whenever I talk about data science because it helps people see all of the career options that exist in the field of data science. Um, and so what we have is we have different phases. So usually you will not have one individual participating in all of the phases in an organization. Instead, you'll have these tasks broken down. These phases will be broken down into different tasks. And so you can have people who specialize in a specific task be responsible for that phase of the project. So at a high level, we have things like business issue understanding, data preparation, analysis and modeling, validation, presentation and visualization. These are all phases of a data science project or the data science methodology.
So I'm going to go into the different job functions based off of these phases. I will skip over the very first one, which is the business issue understanding, because it's more at a corporate management level. So it's usually not involving the data scientist unless it's someone like the chief data scientist or the most senior data scientist in the organization. So if you think about data science, the more important word in the phrase data science is the science, and science is the study of something. So it could be biological science, medical science. In this case, it's data science. So before you can study your data, you need to collect your data. So there's a data collection phase, and there's an entire collection of jobs, if I should use that. Yeah, there's an entire bunch of jobs that are related to data collection under data science. In a lot of places, these activities are called data engineering because there's a whole lot that goes into safely getting your data in and storing it. Now, even in there are different steps. So on the left, I just put it as data engineering. So you might hear it called data engineering. And on the right, we have various activities and also what you need to know and maybe some tools that could help you out if you're going to be carrying out those tasks. So if you are studying, you can maybe access some quick labs that cover some of these topics. So the first one I'm going to cover is data extraction. And data extraction, really, if you think about it, is to say, how do I get my data from the point at which it gets created to my system, to my platform? So for example, if you work for, let's say, an aircraft manufacturer, every aircraft is going to be generating lots and lots of data. Some of the data gets stored in what is called the black box, but some could be maybe sent over the air back to the manufacturer. So for example, what are the engines doing? What is the landing gear doing? What are the wings doing? How is the ventilation and air conditioning performing? So if you think of all of this data, potentially for any aircraft manufacturer, there'll be a lot of data being generated at any point in time. So how do you get that data from the point at which it gets generated to the point at which you can store it? And so we'll just call that data extraction. And for these sorts of purposes, you need to have programming knowledge. The specific language that you choose could be up to you, or it could be influenced by an organizational policy. But there are also tools that could help you out. So, for example, on GCP, you have something called Cloud IoT Core. IoT stands for Internet of Things. So you could take a quick lab on Cloud IoT Core. There are a few labs there that will give you an idea of how you could stream millions of data points across to your platform and store them. You need something called PubSub. So usually, once you get past a few thousand data points, then you need to introduce something which is kind of like a post office. It receives messages and then forwards them, and that introduces some sort of redundancy to your system, so that if the processing arm of your entire infrastructure goes down, you don't lose your data until you come back up. So PubSub is something that you want to look into as well. And then we have cloud functions. So cloud functions take care of, for example, communications with your databases. If you're storing data in databases, if you're storing data in
Google Cloud Storage, for example, Cloud Functions will still come in handy for maybe doing some sorts of transformations before you store the data. And then you also have a data transformation phase. Data transformation, it could involve programming. And so something like Cloud Data Flow would be useful for you to know, because it's useful for setting up data pipelines using something like Apache Beam. But you could also use something like Cloud Data Prep, which uses a visual designer to help you make changes. So transformations are things like this data comes in centimeters, or we need to store it in millimeters, or this data comes in centigrade, but we need to store it in Fahrenheit. So just think of your numerical computations. It could even be things like concatenating data or splitting data up. For example, you have a field that comes in as date and time, but for some reason you need to extract the year into a separate column to make it easier to process at some point in time. And you need to separate time into a separate column. Those are all things that fall under data transformation. So it's possible that you combine your data extraction, data transformation, and data storage in one pipeline. It's also possible to break it up. And whether you have it in one pipeline or multiple pipelines, you could also have multiple people working on different components of the pipeline. Data prep and data flow are available on GCP, and you can also take some quick labs on them to give you an idea of what you could be working with potentially. If you're dealing with text data, then you're going to be talking about storage, and your storage could be in a database. And on GCP, BigQuery is a very good analytics database that you could use to store things. You could also use Cloud SQL if you don't have a lot of data. Cloud SQL is a managed instance, and you could use MySQL, you could use Microsoft SQL Server, or you could use PostgreSQL. They're all supported by Cloud SQL. If you're dealing with binary, then clearly where you want to do your storage is on something like Google Cloud Storage. Then there's also retrieval. So you store data and you retrieve data. Retrieval, if it's in a database, is definitely going to be via structured query language, although you could choose to use something else. Interestingly, a data transformation stage could also be used for data retrieval. So when you retrieve data, a lot of the time when you send to data scientists, you could be sending them lots of text files like CSVs. So you could run your SQL and extract and store CSVs, but it's something that Cloud Data Prep can also handle for you. Moving forward, after your data collection, you also have data preparation. So this could be termed as either data analysis or data tagging, depending on what exactly you're doing. But here we're looking at getting the data ready for analysis. So we might call it tagging. If you're dealing with binary files, then you might be looking at things like labeling the data that you have before you use it for something. Binary files are images, audio files, and video files. To deal with binary files, you definitely will be doing some programming. You might be able to carry out certain operations using the Linux command line. You're definitely going to be storing the files somewhere, so you're also going to deal with a bit of cloud storage there and manipulations. If you're dealing with tabular data, so tabular data is something that you could look at in a spreadsheet, for instance. If you're looking at tabular data, you could do the operations using spreadsheets if the data isn't a lot. So if you're dealing with less than 1 million rows of data, you could use Microsoft Excel, you could use Google Sheets. Any spreadsheet that works for you is fine. But if you're dealing with more than 1 million records, then you're going to have to get pretty creative. If the data is still in the database, you're better off with SQL for manipulating the data.
If the data is out of the database, but it's a lot, so maybe you have lots and lots of CSV files, maybe something like Apache Spark could be helpful, or maybe something like Google Cloud Data Flow using Apache Beam could be helpful for those. Moving on, we have the actual data analysis itself, which is where you're going to be analyzing data to extract insights. If you're dealing with binary files, then you're definitely going to be writing scripts, programming scripts to handle these. If you're dealing with tabular data, you could use programming. So think of maybe using Python in Jupyter Notebooks and using something like NumPy and Pandas to extract your insights. You could also work with spreadsheets if, again, you don't have a lot of data, so 1 million records or less. It's fine to work with that in, say, Microsoft Excel. If it's still in a database, then definitely SQL or Spark or Dataflow. To work as a data analyst, you need to understand statistical correlations because you're going to be dealing with methods of central tendency or methods of measures of central tendency or measures of deviation. You could be dealing with skewness. You could be dealing with what patterns or periodicity exists in your data. So get a grasp of statistics if you're interested in working in this section. Then there's also data visualization. And data visualization is quite important. The role of data visualization is to help you see the correlations that exist in your data, or on the other hand, to see the absence of correlations. To work with data visualization, you could do that with programming. So if you're programming, it's good to see that the next section of your program has to do with, I think, ggplot. So that's an example of data visualization using R. You could be working with Python programming and things like Matplotlib. But you could also do your data visualization from spreadsheets. So again, if you work in an organization where you don't have too much data, you might not find yourself having to write code to visualize your data. You could very easily use spreadsheets, take your data, generate the graphs that you want to generate, build dashboards. Interestingly, Microsoft Excel is pretty powerful at this sort of thing when you don't have too much data. They've got a few courses on edX, so you can search for Microsoft Excel for data analysts. It's a pretty good 3-part course that you can take, and it will teach you everything you need to know about doing data analysis with Microsoft Excel. When you have more data that you need to analyze and visualize, then there are more powerful tools. Tableau is one powerful tool from a third-party company. All they do is build this data visualization tool, but this is a tool that can handle as much as 45 million records inside of it, and it connects to a lot of backends. So you can connect it to Excel backends, you can connect it to database backends such as Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, BigQuery. It connects to all sorts of things. Another one from Microsoft is Microsoft Power BI. It's also a similar tool. And then for data visualization, again, don't forget your statistical correlations. So here, depending on the kind of data you're dealing with, you might be looking for either periodicity or positive or negative correlations, the existence of those, and some other measures. And once you're done with data analysis in the data science methodology, the next thing is data modeling. Now, the data analyst might not be responsible for building the models, and even in data modeling, you have modeling as a researcher and modeling as an engineer.
they're actually two different things. So modeling as a researcher deals with a smaller amount of data and doesn't deal with how the model would scale in production, for instance, like how the model would work if you have lots and lots of people trying to access the model for predictions at any point in time. But that's the domain of the researcher. But either ways, data modeling typically, especially if you're a researcher, involves programming. But even as an engineer, it involves programming. Good news is, unlike a lot of the articles you see out there that only focus on either Python or R, you can actually write your machine learning models in any language that you're comfortable in. The challenge, of course, is the availability of certain libraries that speed things up, that speed up your numerical computations, and also the accuracy of those libraries. But apart from that, you can write your models in any language, JavaScript, Java, C, C++, Swift, whatever it is that you fancy using. You're welcome to use it here. Again, of course, sometimes it depends on the organization that you join. So if you join an organization that is Java-centric, then you'll most likely be deploying your solutions in Java. But then again, you probably joined the organization because you're good with writing Java. Interestingly, it's also possible to model your data using SQL. This statement isn't true across board, so I'm not aware that you can do it in MySQL or PostgreSQL, for example. But there's something called BigQuery ML. So BigQuery is on GCP, and BigQuery ML is an extension to BigQuery's SQL that lets you create and deploy machine learning models using strictly SQL. The advantage of this is that if you work as a data analyst and you're quite conversant with SQL, then you don't have to go and learn a programming language like Python or Java just because you want to become relevant in the organization, you want to roll out certain models. You can do that with SQL. It's easy to learn in a day or two. The challenge, of course, is that you still need to know what machine learning is. You need to know what sorts of algorithms exist, what sorts of hyperparameters you need to deal with, learning rates, optimizers, those sorts of things. You need to know them. But once you learn them, then you can use your SQL to train and deploy your models. There are a few articles out there, and there are a few quick labs, so you can feel free to check them out on QuickLab. Then just for experimentation, for rapid prototyping, you can also try your hands on AutoML or AutoKeras. AutoML is specific to GCP, but what it does is it lets you train advanced models without having to write the programs, just by providing the data. So if you want to train a custom vision model to tell one type of image from another, AutoML Vision exists for that. If you want to train some custom language translation models, AutoML Natural Language exists for that. There's even AutoML tables if you want to just deal with tabular data for some very specific problem domain. So AutoKeras exists for that. There's also something on Azure machine learning. I haven't spent too much time on it, so I can't say too much about it, but it gives you a drag and drop visual designer that lets you set up a machine learning pipeline and train. You'll need to understand a little bit about how data works inside of Azure and how the different components or the different objects in the machine learning pipeline relate to each other. But you can also give it a try. There's nothing that stops you from taking a look at that. So that covers data modeling for us, and we're getting pretty close to the end. So finally is validation. And on the validation, I just said put models into production. So here you would typically be working as a
machine learning operations specialist. It's typically truncated to ML ops. Here, what you're really going to be dealing with is taking something that the researchers or the engineers have produced and then putting it into production. So you're really going to be dealing with pipelines, Kubeflow, TensorFlow extended. They're not all on the same level. It depends on the size of your organization, the number of users that you expect to have on your platform and things like that. But I think you should be able to find some quick labs specifically on Kubeflow and TensorFlow extended. Yeah, and there's probably a Coursera specialization or a course at least that is dedicated to ML ops. So you can also check those out. And last but not the least, you could actually be working in research. So as a data scientist, your job might not be any of the other analysis and other things. It might just be research. If you're working as a researcher, then you're actually just going to be doing the science inside of the science, which is you're going to be trying to find models that work with the data that you have, because again, different data sets don't lend themselves to the same models. We have lots and lots of models and algorithms in machine learning because some models work better with some data sets than others. So you could be researching models, you could be researching optimizers, you could be researching learning rates, all sorts of things. But really, the very geeky stuff in science is what you'll end up doing if you go in for research. Typically, if you start working as a researcher, then you're also going to have lots of academic years in front of you. Typically, you'll end up doing a PhD, and a lot of the time, they even go for postdoctoral positions. So I think that's all. Yes, so I've got to the end of my talk, and I'm happy to entertain any questions. Yes, sir, I have question. Hi, Robert, sir. Yes, hi. Sir, I wanted to ask you a question about data mining. Sure. Can you tell me about the relevancy of data mining and data science, how they relate with each other? Yeah, so data mining is very useful. I would put it under the data analysis as well as the modeling sections of data science. So really think of data science as a wide body, as a name that covers a lot of disciplines that have to do with data. So if you're dealing with data, you are most likely under the data science umbrella. But where specifically you fall is usually the question. So if you remember my this slide. So this slide is called the cross-industry standard process for data mining. So this in itself is data mining. But when you study data mining, you might be learning some very focused things that have to do with, if you extend them, they might start to relate to machine learning. For instance, you might be learning about distance measures. You might be learning about nearest neighbors algorithms under data mining, right? So these are machine learning algorithms, but they are not deep learning algorithms. So we have another field, which is a subfield of machine learning, which is deep learning. Deep learning, if you look at the actual algorithms, they are more specific to linear regression and logistic regression. But if you do data mining, you will not, I'm not aware that you cover neural networks and things like that, or deep learning, but you will definitely cover things like distance measures, nearest neighbors, possibly linear regression and things like that. Got it, sir. Sir, I have one more question. Sure.
Sir, in the data modeling section of your slide, you told about different programming languages which we can use in data science, data mining or data modeling. Yeah. So, can you tell me about that you have arranged these languages in a ranking order or just random? Like Oh no. JavaScript is on the top of Python and Python is on the top of R. It's actually random, so there's no Okay, okay, order. Yes. okay, sir. Thank you, thank you. All right, I guess that's about it about the questions. Thank you, Robert, for your time. It was a great session. Everybody, I hope everybody got to learn a lot from your experience, and now they have a idea of a bigger picture what they're going to do if they choose data science as a career. All right. Thanks, Thank Robert. you for having me. You're welcome. Have a good day. All right. As we did yesterday, uh, on request of some members, we're going to continue session from here on in Urdu. अच्छा, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आप में से कोई ऐसा है जो कल यहाँ पर नहीं था और आज सेशन ज्वाइन किया है। ऑलराइट, कल हमने बेसिकली बेसिक्स ही कवर किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पे आपको इशू हो। तो uh, अगर आपको प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है तो आपको इशू नहीं होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक डाटा फ्रेम जो होता है उस पे हम कौन कौन से कुछ हेल्पफुल फंक्शंस हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के, वो हम कौन कौन से उस पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम डीप्लायर के डिफरेंट फंक्शंस पे बात करेंगे, और उसके बाद ggplot2, और फिर एक रियल डाटा सेट है जिस पे हम चीज़ों को लेके चलेंगे। ओके, होपफुली स्क्रीन शेयर हो गई होगी। ठीक है, चलें। कल हमने देखा था कि डाटा फंक्शन बेसिकली आर के बिल्ट इन डाटा सेट्स को इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है। तो हमने डाटा फंक्शन से कार्स डाटा सेट इंपोर्ट कर लिया। अब सबसे पहले दो फंक्शंस हैं, एक हेड और एक टेल। हेड फंक्शन ये करता है कि डाटा सेट के फर्स्ट 6 रोज रिटर्न कर देता है, और टेल फंक्शन ये करता है कि आपके डाटा सेट के 6 लास्ट रोज रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर आपको 6 से ज़्यादा रोज लास्ट के या फर्स्ट के चाहिए, शुरू के चाहिए हो, तो आप इसमें एक सेकंड आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 चाहिए, तो यहाँ पे आप 10 सेकंड आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास करेंगे, तो आपके पास 10 रोज यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हम डिफरेंट चीज़ें डाटा सेट की देख सकते हैं। एक समरी का फंक्शन होता है। समरी का फंक्शन जब हम डाटा पे कॉल करते हैं तो हमारे पास कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन आ जाती है, यानी कि इसके अंदर मिनिमम वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू डाटा सेट में कौन सी है, हर कॉलम वाइज आपको रिजल्ट मिलता है, तो आपको डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया हो जाता है। सबसे पहले मिनिमम, फर्स्ट क्वांटाइल, मीडियन, मीन, ये सब आपको डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा एक यूज़फुल फंक्शन है जो कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अगर आप आर में डाटा एनालिसिस करते हैं, वो है स्ट्रक्चर एस टी आर, और उसके अंदर आप डाटा फ्रेम को एनक्लोज करेंगे। तो यहाँ पर आपको कॉलम बाय कॉलम पता चलेगा कि आपके पास पहले तो ये पता चल जाएगा टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है और वेरिएबल्स कितने हैं। उसके बाद आपको कॉलम बाय कॉलम उसकी इन्फॉर्मेशन होगी कि कॉलम का टाइप क्या है उसके अंदर डाटा जो है, और आपको कुछ स्लाइस नज़र आ रहा होगा उस कॉलम का।
यानी कुछ वैल्यूज उसकी शो हो रही होंगी। ये भी छोटा डाटा फ्रेम है तो आपको इसका आइडिया, इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन जब हम बड़े डाटा फ्रेम पे जाएंगे तो आपको आइडिया होगा, वो भी हम करते हैं उसमें। बस मैं अभी आपको आइडिया देना चाह रहा था कि ये कुछ फंक्शंस यहाँ पर किस तरह ये यूज होते हैं डाटा फ्रेम्स के। अब हम डीप्लायर की बात करते हैं। डीप्लायर की बात करने से पहले आर पैकेजेस की बात करते हैं। आर के पास बहुत बड़ा डेटाबेस है पैकेजेस की। क्रैन की डेटाबेस है, और भी दो तीन डेटाबेसेस हैं जहाँ से पैकेजेस फेच होते हैं। अगर आपने कोई पैकेज डाउनलोड करना है, आपको हर टाइप के चीज़ के लिए पैकेज मिल जाएगा। ये वाले वो पैकेजेस हैं जो इस वक्त मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं यहाँ पर। कुछ बिल्ट इन है और कुछ मैंने खुद इंस्टॉल किए हैं। तो अगर आप किसी पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, उसके बाद डबल कोटेशंस के अंदर पैकेज का नाम। अब जिस तरह डीप्लायर पैकेज, इस पे हम आज डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो डीप्लायर पैकेज इंस्टॉल करते हैं। ये थोड़ी देर लगाएगा, पैकेज डाउनलोड हो जाएगा। अब जब पैकेज डाउनलोड हो गया तो आपने उसको इंपोर्ट भी करना है, जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में पाइथन में होता है कि आप फॉर एग्जांपल मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। किसी और लैंग्वेज में, जावा में आप यूटिल्स की लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। इस तरह आपको इसमें भी इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट के लिए लाइब्रेरी का फंक्शन है। लाइब्रेरी के अंदर आप फंक्शन का नाम एंटर करेंगे। ये याद रखिएगा कि आपने यहाँ पर डबल कोटेशंस में एंटर किया, यानी एज अ स्ट्रिंग एंटर किया। और यहाँ पर जब आपने लाइब्रेरी में उसको इंपोर्ट करना है तो आपने सिर्फ उसका नाम एज अ वेरिएबल एंटर करना है। अब ये डीप्लायर पैकेज इंपोर्ट हो गया है। ये कुछ इंफॉर्मेशन आती है कुछ पैकेजेस के साथ और कुछ के साथ कुछ डिस्प्ले नहीं होता। डीप्लायर पैकेज के अंदर एक बेसिक जो डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है वो है टेबल। पहले उसको टेबल डाटा फ्रेम कहते थे, अब उसको उन्होंने शॉर्ट करके टेबल कर दिया। टेबल भी बेसिकली एक डाटा फ्रेम है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन को ज़्यादा कंसाइज तरीके से वो शो कर सकता है और उसके अंदर फंक्शनैलिटी ज़्यादा है। अगर हम कार्स के डाटा फ्रेम को इस तरह प्रिंट करते हैं तो आप देखें कि ये पूरा का पूरा डाटा फ्रेम 50 रोज इसके अंदर है, ये प्रिंट हो गया। मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। सर सर जी। डेटा फ्रेम का सर नेम सर दोबारा से सर बता दें सर, ये मैं नोट कर रहा था सर। तो किसका नाम? सर ये लास्ट डेटा फ्रेम जो आपने बता दिया सर, ये ट्रिपल है या टपल? टिबल, TIBBLE। ऑलराइट, अब हम कार्स के डाटा फ्रेम को टेबल में कन्वर्ट करते हैं। वैसे आप डीप्लायर का कोई भी फंक्शन इस पे कॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से आप इसको देख लें। टेबल का फंक्शन आप कॉल करेंगे कार्स के डाटा फ्रेम पे। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि कार्स के डाटा फ्रेम में ही उसको वापस स्टोर करवा रहा हूँ ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। अब जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये ओवरफ्लो नहीं करेगा, ये सिर्फ एक मैनेजेबल चंक उसका दिखाएगा जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ सकता होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आर के अंदर, आर के जो डीप्लायर पैकेज है इसके अंदर बेसिकली 5 फंक्शंस हैं और एक साथ हेल्पर फंक्शन है जिसको ग्रुप पाई कहते हैं। जो 5 फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वैसे तो फंक्शन ज़्यादा हैं लेकिन 5 जो हैं सबसे ज़्यादा मेनली यूज़ होने वाले, जो 99% ऑफ द टाइम यूज़ होते हैं, उनकी मैं बात करता हूँ। पहले मैं उनके नाम बताता हूँ आपको। एक तो है सेलेक्ट। सेलेक्ट हो गया। फिल्टर, उसके अलावा अरेंज, म्यूटेट और समराइज। बेसिकली सेलेक्ट फंक्शन, अगर आप में से किसी ने एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़ी हो तो सेलेक्ट फंक्शन बिल्कुल उस जैसा है। आप इससे कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर फंक्शन रोज को फिल्टर करने के लिए यूज होता है, यानी सेलेक्ट कॉलम्स को फिल्टर करने के लिए और फिल्टर रोज को फिल्टर करने के लिए। अरेंज फंक्शन जिस तरह एसक्यूएल में ऑर्डर बाय होता है उस तरह अरेंज है कि आप डाटा को किसी एक कॉलम की वैल्यूज के हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। म्यूटेट फंक्शन जो है वो डाटा फ्रेम में म्यूटेशन यानी चेंज करने के लिए होता है। आपने एक कॉलम की वैल्यू यूज़ करके कोई न्यू कॉलम क्रिएट करना है, या किसी कॉलम की वैल्यू को आपने फॉर एग्जांपल आपने जब वैल्यूज एंटर की तो वो
उसमें एरर था, +1 हो गया गलती से आपसे। तो आपने जब म्यूटेट का फंक्शन यूज़ किया तो आप उसमें -1 करके सारी वैल्यूज़ को करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा समराइज का फंक्शन जो है ये डाटा को समराइज करेगा जब हम डाटा को किसी एक चीज़ पे ग्रुप करेंगे। ये इसका आपको मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ आएगी। ओके, कार्स की बजाय डाटा फ्रेम हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं। Wait, जिसके अंदर तो कुछ ज़्यादा कॉलम्स हो, इस तरह का डाटा फ्रेम यूज़ करते हैं। ओके, आइरिस का यूज़ कर लेते हैं। आइरिस को भी हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक मैनेजेबल चंक के तौर पे डाटा हमारे पास शो हो। सर टेबल एक दफ़ा दोबारा बता दें प्लीज़। टेबल भी समझ लें एक डाटा फ्रेम है, इसके अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है। बेसिकली आर का जो डाटा स्ट्रक्चर है इस तरह के टेबल डाटा को होल्ड करने के लिए वो है डाटा डॉट फ्रेम, यानी डाटा फ्रेम। और जो लाइब्रेरी है डीप्लायर, वो उस पे आप जब भी डाटा फ्रेम को एंटर करते हैं तो उसको टेबल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर बस मैंने उसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट किया है ताकि आप लोगों को फ़र्क दिखा सकूं। बाकी डाटा फ्रेम और टेबल सेम चीज़ है, बस ये टेबल डाटा जो होता है ना, जिसके अंदर रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उसको हैंडल करने के लिए। ऑलराइट, अब हम बारी बारी इस पे सारे फंक्शंस जो हमने उस वक्त जिनके नाम लिए थे वो इस्तेमाल करते हैं। ओके, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ ताकि आपको कभी कोई फंक्शन समझ ना आ रहा हो तो आप खुद भी उसको देख सकें। क्वेश्चन मार्क डालेंगे और उसके बाद उसका नाम लिखेंगे, फंक्शन का नाम। अब देखें, ये सेलेक्ट उसने डीप्लायर लाइब्रेरी में से उसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन की है। यहाँ पर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से एक्सेप्ट करता है उसकी इंफॉर्मेशन है, और आप नीचे जाएंगे तो आपको एग्जांपल्स भी इसमें नजर आ जाएंगी। अगर आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं हो रहा कैसे यूज़ करना है, कैसे आर्गुमेंट्स देने हैं, आप कोई भी फंक्शन लिखेंगे तो आपके पास यहाँ इंफॉर्मेशन उसकी आ जाएगी। ओके, इस पे आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इसका होता है वो होता है डाटा। जो डाटा सेट या फिर डाटा फ्रेम हमारे पास होगा उसकी बेसिस पे ये सेलेक्ट करेगा, यानी किस डाटा सेट में से हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिंगल कॉलम है तो हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे, जैसे बिल्कुल सेम तरीके से एसक्यूएल के अंदर सेलेक्ट होता है, बस ऑब्वियसली सिंटेक्स उसका डिफरेंट होता है, लेकिन लॉजिक बिल्कुल सेम है और इंट्यूटिव लॉजिक है। आपने ये किया सेलेक्ट फ्रॉम आइरिस सेपल डॉट लेंथ कॉलम, तो ये आपके पास ये सेलेक्ट हो गया। ओके, अगर आप एक से ज्यादा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली कॉमा डाल के एक से ज्यादा नेम्स यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल सेपल डॉट लेंथ और सेपल डॉट विड्थ आप इसमें से निकालना चाह रहे हैं, तो ये भी आपके पास एक्सट्रैक्ट हो गया। इसको एक्सट्रैक्ट करने का एक और तरीका भी है। जिस तरह मैंने कल कंकैटिनेशन के फंक्शन की बात की थी, तो आपके पास ये सी वाला फंक्शन जो है कंकैटिनेशन का, आप इसके अंदर एनक्लोज करके भी लिखेंगे, यानी वेक्टर पास करेंगे, तो फिर भी आपके पास डाटा एक्सट्रैक्ट होगा। एक सेकेंड, इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक, ये आपके पास एक्सट्रैक्ट हो गया। अब सेलेक्ट के अंदर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है जो कि जो हम देख सकते हैं। अब अगर आप ये डाटा फ्रेम देखें, लेट्स से हम इसमें पेटल डॉट लेंथ जो है इस कॉलम के अलावा बाकी सब सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर सिर्फ 5 कॉलम्स हैं, आप टाइप कर सकते हैं। लेट्स से 20 कॉलम्स हैं, 25 कॉलम्स हैं, आप सिर्फ एक को निकालना चाह रहे हैं, बाकी सबको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको सब कॉलम्स लिखने पड़ेंगे एक उसके अलावा। तो इसके अंदर नेगेटिव सिलेक्शन भी होती है, यानी सेलेक्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट दैट कॉलम। तो उसको हम देखते हैं। आइरिस डाटा फ्रेम ही हमने लिया और हम माइनस का साइन डालेंगे, उसके बाद पेटल डॉट लेंथ। आपके पास हर चीज़ सेलेक्ट हो गई,
एक्सेप्ट पेटल डॉट लेंथ। लेट्स से आप दो चीज़ों के साथ ऐसा करना चाह रहे हैं, तो आप इसी तरह एक और माइनस ऐड करें। फॉर एग्जांपल सेपर डॉट लेंथ को भी आप नहीं सेलेक्ट करना चाह रहे, तो आपके पास वो भी यहाँ से निकल गया। जिस तरह हमने लास्ट टाइम वो देखा, तो आप इसके अंदर कंकैटिनेशन के तौर पे भी इसको कर सकते हैं। सी के अंदर, सी के बाहर आप माइनस लगाएं, और सी के अंदर जो भी आपने वेक्टर पास किया होगा वो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव सिलेक्शन में चला जाएगा। सेम रिजल्ट हमारे पास इससे भी आया है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं इससे हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम चेंज नहीं हो रहा। ये इन प्लेस अपडेशन नहीं हो रही है, सिर्फ सिलेक्शन हो रही है उसमें से। अगर आप इसको कहीं सेव करना चाह रहे हैं तो आपको ये किसी और वेरिएबल में अपडेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला अगर हम लेट्स से हम एक टेस्ट डाटा फ्रेम चाह रहे हैं, तो आप इस चीज़ को इस टेस्ट में सेव कर सकते हैं। अगर आप अप एरो की प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली कमांड आपके पास दोबारा आ जाएगी, तो आप इसमें चेंजेस करके इसमें टेस्ट वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अब हम टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास यही चीज़ दोबारा आ गई। ठीक है, फर्स्ट चीज़ हो गई। अब आगे वाले समझने में आपको आसानी होगी। उसके बाद अगर हम फिल्टर की बात करते हैं, फिल्टर बेसिकली, फिल्टर का सिंटेक्स ये है कि वो एक डाटा फ्रेम लेगा और दूसरा वो कंडीशन लेगा कि किस कंडीशन पे फिल्टर करना है। इसी तरह ही हम एसक्यूएल में करते हैं कि आप वो देते हैं डाटा, जो भी टेबल होता है, और आप कंडीशन देते हैं कि किस कंडीशन पे। फॉर एग्जांपल सैलरी इससे ज़्यादा है तो वो रोज़ रिटर्न कर दो, सैलरी इससे कम है तो वो रोज़ रिटर्न कर दो। तो अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास डाटा फ्रेम दोबारा प्रिंट कर देते हैं ताकि हमारे पास फुल डाटा फ्रेम की बात हो रही हो। इसमें अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास पेटल सेपल वेट जो है वो 3 से ऊपर जो है वो सारे रोज हमारे पास रिटर्न हो जाए, तो हमने सेपल डॉट वेट ग्रेटर देन 3, बस ये कंडीशन यहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप अगर डिफरेंस देखना चाह रहे हैं कि ऑब्वियसली देखने में बाज़ाहिर तो सेम लगेगा, यहाँ पे जो हमारे पास टेबल रिटर्न हुआ है वो 150x5 का हुआ है, यानी 150 रोज 5 कॉलम्स। यहाँ पे हमारे पास 67x5 का हुआ है, मतलब हमारे पास कॉलम्स जो रोज थे वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें कि हम फॉर एग्जांपल सिर्फ एक ही उस पर निकालना चाह रहे हैं कि हमारे पास पेटल वेट जो है वो 0.1 के इक्वल है। तो इसके अंदर भी आप डबल इक्वल यूज़ करते हैं जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में फॉर चेकिंग इक्वालिटी। तो यहाँ से आपके पास ये बेसिकली बूलियन इंडेक्सिंग ही हो रही है, लेकिन फिल्टर की यूटिलिटी के साथ। तो आपके पास सिर्फ वो वाले रोज रिटर्न हो गए जिसके अंदर पेटल वेट की वैल्यू 0.1 एग्जैक्टली इसके इक्वल है। ठीक, इसके बाद हम अरेंज की बात करते हैं स्क्रीन क्लियर करके। अगर आप स्क्रीन क्लियर करना चाह रहे हैं इसके अंदर आर स्टूडियो के अंदर, तो आप कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। हम दोबारा डाटा फ्रेम को देखते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल हम इसको ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, अरेंज करना चाह रहे हैं पेटल लेंथ के हिसाब से, कि जो सबसे छोटी पेटल लेंथ है वो सबसे ऊपर आए। तो इसके लिए हम अरेंज का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सारे फंक्शंस तभी चलेंगे जब आपने डीप्लायर लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई होगी। तो इसका सिंटेक्स ये है कि आप डाटा सेट या डाटा फ्रेम यहाँ पर मेंशन करेंगे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पे। उसके बाद आप जिस जिस कॉलम के हिसाब से आप अरेंज करना चाह रहे हैं, अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है तो सिंपली उसका नाम लिखते हैं। हमने जिस तरह असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ करना है तो इस तरह हम एंटर कर देते हैं। तो आपके पास सबसे छोटी वैल्यू जो कि 1 है वो सबसे पहले आई है, और उसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास आ गई। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अगर ये 1.1 1.2 और 1.2 दो कॉलम्स हैं, ये दोनों एक साथ आए हैं, लेकिन हमारे पास जो सेपल विड्थ है
वो जो बड़े वाली है वो पहले आ रही है। अगर आप दो कॉलम्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, अरेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जहां पर आपके पास पेटल लेंथ की वैल्यू सेम हो, वहां सेकंड कॉलम जो है वो डिसाइड करे कि कौन सी चीज़ ऊपर आएगी और कौन सी चीज़ नीचे नीचे। तो आप यहाँ पर सेकंड कॉलम भी एंटर कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जहां पर 1.2 के साथ 4 ऊपर आ रहा था, अब 3.2 ऊपर आ रहा है। हम इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं तो हम सेकंड कॉलम हटा देते हैं, एक पे ही चेक करते हैं। आपने सिंपली जो कॉलम है, इस कॉलम को डिसेंडिंग के फंक्शन में एनक्लोज कर देना है, DESC, ये डिसेंडिंग का फंक्शन है, आपने इसके अंदर इसको एनक्लोज कर देना है। इसको मैं शुरू से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर आपने डिसेंडिंग का फंक्शन वो किया और इसके अंदर आप उसका नाम लिख लेंगे कॉलम का। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने उसको ऑर्गेनाइज या अरेंज कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप एक से ज़्यादा कॉलम पे भी कर सकते हैं। इसी तरह डिसेंडिंग आप यहाँ पर कॉमा डाल के एक बार फिर डिसेंडिंग पे करके सिंपल डॉट लेंथ करेंगे तो ये दोनों कॉलम्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट कॉलम होता है पहले उसकी बेसिस पे अरेंज करता है। उसके बाद अगर फर्स्ट की वैल्यू कहीं सेम होती है तो फिर सेकंड की बेसिस पे उसको डिसाइड करता है कि कहाँ पर कौन सी ऊपर आएगी कौन सी नीचे आएगी। ओके, अरेंज हो गया। म्यूटेट बहुत ही सिंपल है, म्यूटेट की बात करते हैं। ओके, ये डाटा फ्रेम है हमारे पास। लेट्स से किसी रीजन के लिए हमें पेटल लेंथ का एक और कॉलम चाहिए जिसमें पेटल लेंथ जो है वो डबल हो, तो हम एक न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हैं म्यूटेट से। म्यूटेट में हम डाटा फ्रेम पास करेंगे, उसके बाद हम न्यू कॉलम का नाम लिखेंगे, लेट्स से डबल पेटल डॉट विड्थ, और इसके इक्वल यानी हम इसको असाइन कर रहे हैं, इस कॉलम नेम के अंदर वैल्यूज स्टोर होंगी सारी। तो पेटल डॉट विड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये इसमें से वैल्यूज लेगा सब के सब और उनको 2 से मल्टीप्लाई करेगा और उनको इस कॉलम के अंदर स्टोर करवा देगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं डबल पेटल वेट जो है हमारे पास वो इसका डबल आ रहा है। जैसे इसके अंदर 0.2 है, हमारे पास 0.4 है। इसी तरह पूरा का पूरा जो कॉलम था वो हमारे पास डबल होके यहाँ पर आ गया। सर अब आयरस का नया कॉलम आयरस के अंदर बन गया या ये टेम्परेरी है? नहीं नहीं, ये टेम्परेरी है। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये इन प्लेस अपडेशन नहीं करता, ये सिर्फ उसमें से सिलेक्शन करता है और आपके पास एक न्यू डाटा फ्रेम क्रिएट करता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये वाला रिजल्ट सेव करना है आईआरएस डाटा फ्रेम में ही, तो आपको इसको आईआरएस के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। अब जब हमने इसमें सेव कर दिया तो अब आईआरएस में ये नया कॉलम आ चुका है। और सर इसी को डिलीट करके दिखाएं, ये वापस डिलीट करें अगर? इसको अगर डिलीट करना है तो जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आईआरएस के अंदर से डिलीट कर दूं? यस सर, आयरस के अंदर से डिलीट कर ठीक है, आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं आईआरएस एक्सेप्ट दिस डबल, अब ये डिलीट हो गया। आप बेसिकली नेगेटिव सिलेक्शन कर सकते हैं कि उसके अलावा बाकी सब कुछ सेलेक्ट हो जाए। ओके सर, ओके। ओके, इसके आगे अब हम समराइज पे बात करते हैं। समराइज से पहले हमें ग्रुप बाय की बात करनी पड़ेगी। ग्रुप बाय बेसिकली इसके लिए हम डाटा सेट कोई और लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास हम प्रॉपरली ग्रुप कर सकें। MPG डाटा सेट डबल कोटेशंस में नए वर्जन में पहले वाले काफ़ी सारे डाटा सेट्स नहीं है आर के जो होते थे। इसमें अगर हम सर ये डाटा सेट अपडेट भी करते हैं या मतलब एक दफ़ा इन्होंने स्टोर करा दिया उसके बाद अपडेट नहीं होंगे?
ये चेंज होते रहते हैं। बेसिकली ये एक बहुत ही रियलिस्टिक डाटा सेट्स नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं आपके पास। तो अगर आपने रियलिस्टिक डाटा सेट्स पे प्रैक्टिस करनी है तो कैगल एक वेबसाइट है, वहाँ से आप डाटा सेट्स सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो डाटा सेट्स होंगे ये बिल्कुल क्लीन होते हैं, वो रियलिस्टिक नहीं होते। ये जब हम एक प्रोजेक्ट पे बात करते हैं ना, अभी एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली क्या बात कर रहा हूँ मैं इस पे। ओके सर। Okay, let's try this one. No. ओके, स्टॉर्म्स का डाटा सेट लेते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर होपफुली डेट्स होंगी। यस, इसके अंदर ईयर है तो हम बाय ईयर उसको वो कर सकते हैं। ये होता रियल डाटा सेट है, लेकिन इसको बिल्कुल क्लीन करके उन्होंने दिया हुआ होता है। तो क्लीन डाटा सेट, वो जो डाटा सेट आपके पास रियलिस्टिक होता है उससे क्लीन तक पहुंचने में आपको बहुत टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा काम आपको इसी चीज़ पे करना पड़ता है। तो इस पे सही प्रैक्टिस हो नहीं सकती। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली ये फंक्शंस देखने के लिए ये सफिशिएंट है। मैं अनक्लीन डाटा सेट पे भी बात करूंगा। ओके, स्टॉर्म्स का डाटा सेट है हमारे पास। इसमें हम लेट्स से जो समराइज है वो समराइज एक ग्रुप्ड डाटा सेट लेगा, जो कि आप किसी एक कॉलम की वैल्यूज के हिसाब से आपने उसको ग्रुप किया होगा। अगर हम देखते हैं हमारे पास यूनिक ईयर्स कौन कौन से हैं, ये जब मैं अभी करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये कल मैंने बताया था कि डॉलर का जो ऑपरेटर है, इससे आप कॉलम्स को एड्रेस कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास ये सब डिफरेंट ईयर्स हैं, तो इतने डिफरेंट हमारे पास ग्रुप्स बनेंगे। अब हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रुप्ड बाय ईयर। तो हम इसी डाटा सेट को ग्रुप करते हैं। एक फंक्शन है ग्रुप अंडरस्कोर बाय, ये भी dplyr का फंक्शन है। ये इसके अंदर आप सबसे पहले डाटा सेट को देंगे। dplyr के सब फंक्शंस का सिंटेक्स बिल्कुल एक जैसा ही है। आप पहले डाटा सेट देते हैं, उसके बाद आप उसमें जो भी सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है जो आप चाहते हैं उसको करना, तो वो आप देते हैं। तो इसको हम ईयर के हिसाब से ग्रुप बाय करते हैं। जो ग्रुप जब डाटा ग्रुप हो गया तो ये इस सूरत में यूजेबल नहीं है। ये आपके पास ग्रुप्ड है, लेकिन ये है कि आपके पास डाटा बिल्कुल वैसे का वैसे ही शो हो रहा है। बस यहाँ पर आपके पास ग्रुप शो हो रहे हैं कि 41 ग्रुप्स हैं, ग्रुप्ड बाय ईयर है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास शो हो जाएगी, लेकिन फिलहाल आपके पास कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं आई इन ईयर्स की बेसिस पे। तो जब आप इन्फॉर्मेशन, अब आपने ग्रुप कर लिया डाटा सेट को, अब लेट्स से आप चाहते हैं कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि हर साल का एवरेज प्रेशर क्या था जब हमारे पास स्टॉर्म आया, तो एवरेज प्रेशर क्या था, ये एवरेज विंड क्या थी। आई एम नॉट श्योर कि यूनिट्स इनके क्या हैं, बट हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली आप समराइज का फंक्शन यूज करेंगे। उसमें आप अब आपने ये वाला जो ग्रुप डाटा फ्रेम है ना, ये इसमें पास करना है। ओके, ये आपने पास कर दिया। अब आपने एक, जिस तरह आपने म्यूटेट में नया कॉलम बनाया था ना, उस तरह आपने नया कॉलम बनाना है। फॉर एग्जांपल एवरेज विंड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम दोनों चीज़ें ही कर लेते हैं। लेट्स से हम ग्रुप कर रहे हैं तो हम दोनों चीज़ें देखना चाह रहे हैं। तो एवरेज विंड में आप मीन का फंक्शन होता है आर के अंदर बिल्ट इन, तो एवरेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने कॉलम का नेम देना है। उसके बाद आप न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे एवरेज प्रेशर। तो इसमें भी आप मेन का फंक्शन यूज करके इसमें प्रेशर का कॉलम पास कर सकते हैं। अब जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपके पास जितने ग्रुप्स थे, यहाँ पर आपने देखा 41 ग्रुप्स थे, आपके पास उतने रोज का जो टेबल है वो रिटर्न हुआ है। यानी हर ईयर का एक रो है। पहले हर ईयर के मल्टीपल रोज थे, 10,000 एंट्रीज थी इसके अंदर। तो आपके पास इस साल का 1975 का जो एवरेज विंड है वो ये है।
एवरेज प्रेशर आपके पास ये है। तो इसको भी, इसके ऊपर आप यहाँ पे मज़ीद इसको किसी चीज़ में स्टोर करके, लेट्स से इसको समरी बाय ईयर में स्टोर करवा देते हैं। इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो आप इसके ऊपर मज़ीद फंक्शंस, अब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आई है, तो आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो हम लेट्स से लेटेस्ट ईयर्स जो हैं उनका पहले देखना चाह रहे हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है, तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो 2015 इसके अंदर लेटेस्ट ईयर है, तो उसके हिसाब से आपके पास इंफॉर्मेशन शो हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास डीप लायर की डिस्कशन कंक्लूड हो गई। जब हम उस पर बात करेंगे डाटा फ्रेम पे, अनक्लीन या फिर रियलिस्टिक डाटा फ्रेम पे, तो फिर इस पे हम दोबारा वापस आएंगे। अब मैं आपको जल्दी जल्दी जीजी प्लॉट का बताता हूँ। जीजी प्लॉट बेसिकली एक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है जो कि आर की समझ लें बहुत ही ब्रिलियंट लाइब्रेरी है, और आर अक्सर लोग यूज़ भी इसकी वजह से करते हैं कि इसकी प्लॉटिंग बहुत ही अच्छी होती है और बहुत सिंपल तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं। शुरू में शायद आपको सिंटेक्स थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन वंस यू गेट यूज टू इट, ये बहुत ही ईजी है। तो इसके लिए आपको एक और पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस ggplot2। ओके, ये आपके पास ggplot2 इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपने इसको इंपोर्ट करना है जिस तरह आपने उसको किया था, लाइब्रेरी ggplot2। ये वार्निंग तब आती है जब आपके पास आर का लेटेस्ट वर्जन ना हो। तो कुछ टाइम पहले ही अपडेट हुआ, तो मैंने अपडेट नहीं किया था। तो अगर ये वार्निंग सही करनी है तो आप आर को अपडेट कर लें। ओके, ggplot2 में दो फंक्शंस होते हैं बेसिकली, qplot और ggplot। अगर मैं दोनों की बात करूं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली जो मेन फंक्शन यूज होता है वो ggplot है। ggplot फंक्शन आपके पास लेयर बाय लेयर प्लॉट्स क्रिएट करता है, और इसमें ggplot के पैकेज में सबसे ज़्यादा यही वाला यूज़ होगा जब आप करेंगे। qplot बेसिकली वो भी यूज़ होता है, लेकिन वो जल्दी प्लॉट क्रिएट करने के लिए होता है, आपके पास उतना कंट्रोल नहीं होता। तो अगर हम ggplot की फंक्शन की उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, तो आपके पास ggplot के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, डाटा, सबसे पहले आपने डाटा पास करना है। उसके बाद मैपिंग्स हैं। मैपिंग्स बेसिकली ये होंगी कि आपको एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या चाहिए। ये सिंपल चीज़ें हैं। ये वाले दो चीज़ें ही आपको चाहिए होती हैं जब आप इसमें ggplot को यूज़ करते हैं। लेकिन सिर्फ इस फंक्शन की बेसिस पे ये प्लॉट क्रिएट नहीं करता। मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास फंक्शन जो था, अब ये हमारे पास RS का डाटा फ्रेम है। इसमें देखते हैं हमारे पास जो ये ऑर्डिनल वेरिएबल है, हमारे पास स्पीशीज, इसके अंदर हमारे पास कितनी स्पीशीज हैं? इसके अंदर 3 स्पीशीज हैं, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं बाद में। ठीक, ओके। ggplot में हम सबसे पहले डाटा एंटर करेंगे, बल्कि आपको मैं पहले सिंपल उससे दिखाता हूँ। कार्स का डाटा फ्रेम जो हमने यूज़ किया था उससे लेके चलते हैं। ओके, ये हमारे पास इसके अंदर 2 ही कॉलम्स हैं। अगर हम लेट्स से इन दोनों को एक दूसरे के साथ प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो आप ggplot में वेरिएबल स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद जो मैपिंग स्पेसिफाई करनी है आपने, एस्थेटिक्स का फंक्शन AES, एस्थेटिक्स या मैपिंग्स मींस एक्स या वाई एक्सिस पे आपने क्या रखना है। तो लेट्स से एक्स एक्सिस पे मैं स्पीड रखना चाह रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं चेक करने के लिए, और वाई पे डिस्टेंस। तो यूजुअली जो ये फंक्शन कॉल होती है, इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं ताकि इसके ऊपर हम ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स ऐड करके प्लॉट बना सकें। ये फंक्शन कॉल आपके पास प्लॉट स्टैंड अलोन क्रिएट नहीं कर सकती। अब आपने ये कर दिया, अगर हम इसको कॉल करते हैं जी को,
तो देखें आपके पास ये बना है, मैपिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन इसने एक एम्प्टी प्लॉट दिया है। इसको नहीं पता इसके ऊपर कौन से ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स मींस अगर आपने पॉइंट्स इस पे डालने हैं, आपने बार्स डालनी है, तो आर को वो बताना पड़ता है। इससे हम कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। जब हम समरी का फंक्शन जी पे कॉल करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस पे मिल जाती है। पहली चीज़ तो हमें डाटा का पता चला है कि हमारे पास स्पीड और डिस्टेंस जो है वो दो कॉलम्स इसमें यूज हो रहे हैं, और हमारे पास 50x2 का ये डाटा सेट है। उसके बाद हमारे पास मैपिंग्स ये हैं कि एक्स एक्सिस पे स्पीड है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। बाकी चीज़ें ये फेसेटिंग होती है, इस पे भी मैं बात करता हूँ। बाकी चीज़ें इसको फिलहाल रहने देते हैं। ओके, हमारे पास जी है। अब लेट्स से हम इस पे स्कैटर प्लॉट या फिर पॉइंट्स वाला प्लॉट बनाना चाहते हैं, तो हम जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट देंगे। जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए जियोम पॉइंट, ये वाला फंक्शन जो है ये बेसिकली स्कैटर प्लॉट्स या फिर पॉइंट वाले प्लॉट्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है। जैसे ही आपने इसके साथ ये ऐड किया तो आपके पास ये प्लॉट क्रिएट हो गया। बेसिकली जो जी प्लॉट की कॉल है उससे आपको आइडिया हो रहा होगा आपके, ये सिर्फ मैपिंग्स क्रिएट करती है कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, और प्लॉट की यानी एक्स लिमिट क्या है, वाई लिमिट क्या है, प्लॉट का सीन सेट करती है। उसके बाद जब आपने उस पर बेसिकली जो चीज़ प्लॉट करनी होती है, जो पॉइंट्स हैं, बार्स हैं, वो आपने इसमें स्पेसिफाई करने होते हैं। अब अगर आप अप वाला एरो की प्रेस करें तो आपके पास ये फंक्शन कॉल दोबारा आ जाएगी। अब लेट्स से हम इसमें एक आ, एक एक स्मूथ लाइन बनाना चाहते हैं जो कि डाटा के ट्रेंड को फॉलो करती हुई जाए। तो हम ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट स्मूथ जियोम अंडरस्कोर स्मूथ इस पे एंटर करते हैं, तो ये एक मैपिंग क्रिएट करेगी। ये पॉलिनोमियल मैपिंग होती है, ये उस डाटा के हिसाब से एक कर्व हमें प्रोवाइड करेगी। यूजुअली जो लोग मशीन लर्निंग में काम कर चुके हैं उनको लीनियर रिग्रेशन का आइडिया होगा। लीनियर रिग्रेशन आपके पास एक स्ट्रेट लाइन देता है डाटा के ट्रेंड को फॉलो करते हुए। अगर आप यहाँ पे मेथड, फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेथड आपके पास LOESS ये स्पेसिफाई हो रहा है। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें तो आपको इस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसके पीछे टेक्निकलिटी क्या है। अगर आप लीनियर मेथड चाह रहे हैं यानी लीनियर रिग्रेशन, तो आप मेथड इज इक्वल टू LM स्पेसिफाई करेंगे, तो आपके पास ये लाइन बन गई। आप देख रहे होंगे कि ब्लू लाइन के साथ एक डार्क ग्रे रीजन आ रही है, इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। यूजुअली ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, यानी इस लाइन के अंदर अंदर जो है वो आपके पास मैपिंग्स, जो आपके पास रिग्रेशन लाइन है वो उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है, और मैपिंग्स वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। ओके, उसके बाद अगर हम मज़ीद दूसरे डाटा सेट पे जाते हैं, आयरिस वाले। अब लेट्स से ये आपने सिंगल प्लॉट तो देख लिया। लेट्स से हम चाहते हैं कि हर एक स्पीशीज का अलग प्लॉट बने, तो उस चीज़ में फेसेटिंग काम आती है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले जी को अपडेट करते हैं। जी प्लॉट के अंदर आप आयरिस का डाटा सेट पास करेंगे। उसके बाद आप एस्थेटिक्स की मैपिंग क्रिएट करेंगे। लेट्स से हम देखना चाह रहे हैं कि सेपल लेंथ का सेपल विड्थ के साथ क्या रिलेशन है। तो हम मैपिंग इस तरह क्रिएट करते हैं कि एक्स के अंदर सेपल लेंथ और y के अंदर सेपल विड्थ, ये आपके पास क्रिएट हो गया। उसके बाद आप इस पे पहले जियोम पॉइंट कॉल करते हैं, तो आपके पास ये उसका रिलेशन आ गया। अब इस पे एक लीनियर रिग्रेशन लाइन हम कॉल करते हैं, तो ये आपके पास इस तरह का रिलेशन शो करता है। अब लेट्स से आप इसमें आप चाहते हैं कि हमारे पास यही रिजल्ट आए, लेकिन आप सेपरेटली देखना चाह रहे हैं। जो हमारे पास ये जिस तरह मैंने आपको उस वक्त दिखाया था, ये स्पीशीज जो हमारे पास हैं, डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो डिफरेंट स्पीशीज पे ये वाला बिहेवियर क्या होता है। अगर हम सिर्फ सेटोसा का लें तो सेटोसा में आपके पास किस तरह का रिजल्ट
इसमें किस तरह का ट्रेंड आपके पास बनता है, और इसके अंदर क्या बनता है और इसके अंदर क्या बनता है, हम अलग अलग देखना चाह रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप डाटा फ्रेम्स अलग बनाएं और 3 बार प्लॉट करें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और दूसरा तरीका जीजी प्लॉट के अंदर बहुत अच्छा एक मेथड है कि फेसेट ग्रिड आप बना सकते हैं। फेसेट ग्रिड के अंदर आप एक फॉर्मूला पास करते हैं। फॉर्मूला ये होता है कि आप इसके अंदर आप एक जिस तरह मैपिंग्स एक्स और वाई के देते हैं, उस तरह आप इसके अंदर भी जो आप फेसेट ग्रिड्स बनाएंगे उसके अंदर रोज और कॉलम्स की आप देते हैं। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया होगा। डॉट और आगे ये जो टिल्डा का साइन होता है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन आप इसके अंदर पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पास करते हैं स्पीशीज। अब देखें ये आपके पास 3 डिफरेंट कॉलम्स बन गए। जब हमने यहाँ पर पहले डॉट दिया तो आपके पास इसका मतलब है कि एनी नंबर ऑफ रोज, यानी 1 रो, यहाँ पर 1 रो आएगा और हमारे पास जो जितनी स्पीशीज हैं उतने कॉलम्स बन जाए। अगर आप इसको रो के फॉर्मेट में दिखाना चाह रहे हैं तो आप टिल्डा का साइन इस तरफ लगा के डॉट इधर डालेंगे तो ये आपके पास रो की फॉर्म में आ गया। इसमें ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो यहाँ पे इसको एक दफ़ा देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास वही सेपल लेंथ और सेपल विड्थ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन उसको इसके अंदर ब्रेक डाउन करके। तो आप देख रहे हैं कितने सिंपल ये इतनी सी फंक्शन कॉल से आपने इतना मीनिंगफुल ग्राफ इसमें प्लॉट इसमें क्रिएट कर लिया। तो इस वजह से जीजी प्लॉट 2 जो है काफ़ी पॉपुलर है। ये आपने इस चीज़ पे ये नहीं होना कि अभी आपको समझ नहीं आ रही, हो सकता है आपको इस वक्त चीज़ें समझ ना आ रही हो। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे भी ये अजीब लगा था। जब आप इसको यूज़ करेंगे, आपने एक तो डॉक्यूमेंटेशन लाजमी, आपने कुछ भी यूज़ करना है आपने डॉक्यूमेंटेशन देखनी है। इसके अलावा कभी भी इस चीज़ पे नहीं घबराना कि आपको नहीं एक एक चीज़ याद नहीं रहती। ये चीज़ नहीं करने बैठ जाना कि आपने ये वाला फंक्शन का नाम याद रखना है। जब आप करते रहेंगे ना तो आपको याद आता रहेगा। आपने सर इसमें हमने ये जिस तरह आपने पॉइंट मतलब पहले आपने पॉइंट्स उधर बनाए फिर आपने वो लाइन एग्जीक्यूट की, तो इन सबको हम एक वेरिएबल में नहीं कर सकते जिस तरह आपने पहले वेरिएबल्स में किया? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप इस फंक्शन कॉल को जी के अंदर स्टोर करा लें तो जब आप जी लेट्स से इसको हम एच में करवा लेते हैं, तो अब ये हमारे पास जो एंड रिजल्ट है ना, इसको सेव रखने के लिए कि नेक्स्ट टाइम आप इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ एक वेरिएबल का नेम लिखें। तो आपने इसको एच में फॉर एग्जांपल स्टोर करवा लिया। अब जब भी एच कॉल होगा ना तो ये वाला ग्राफ आपके पास क्रिएट हो जाएगा। जो कन्वेंशन है वो बेसिकली ये है कि आप जीजी प्लॉट की कॉल को जी के अंदर स्टोर करवाते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से आप उस पर ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स और फेसेट ग्रिड्स क्रिएट करते जाते हैं। और लेकिन इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उसको किसी और वेरिएबल में स्टोर करें या ना करें। जी, तो मैं कह रहा था कि आप इस चीज़ पे गूगल पे लाजमी सर्च करते रहिएगा कि फ्लांच कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई फंक्शन कॉल आपसे नहीं हो रही, अगर यहाँ पर भी हेल्प में भी आपको हेल्प के टाइम में भी आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिल रही या आपको समझ नहीं आ रही, आप यूट्यूब पे सर्च करें, आप गूगल पे सर्च करें, आपको लाजमी इस पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आर की एक चीज़ ये भी अच्छी है कि इसकी बहुत ज़्यादा यूज़र सपोर्ट है। लोग जो भी आप क्वेश्चन आपको इशू आएगा किसी न किसी ने वो पहले से पूछा हुआ होगा। ओके, अब हमारे पास जो बाकी टाइम रह गया है उसके अंदर हम देखते हैं कि मैं जल्दी जल्दी क्योंकि आपको मैं कुछ टाइम दूंगा क्विज के लिए, तो जल्दी जल्दी एक रियल डाटा सेट पे मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि बेसिकली आपके पास डाटा जो रियल लाइफ में आता है वो किस तरह का आता है। तो जिस तरह उसमें रॉबर्ट ने भी आपको ये चीज़ें क्लियर की कि कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, मैं आपको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि डेटा साइंटिस्ट जो है या डाटा एनालिस्ट वो उसकी डाटा साइंस की लाइफ साइकिल क्या होती है। उसमें यह है कि सबसे पहले आपके पास डाटा लोडिंग और क्लीनिंग का स्टेप होता है। जो डाटा क्लीनिंग का स्टेप है ये आपका 60% एटलीस्ट टाइम आपका यही ले जाता है। आपके पास डाटा सेट इतनी बुरी हालत में आता है कि आपको उसको क्लीन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप एज डाटा साइंटिस्ट या डाटा एनालिस्ट आप बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के आपके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे। मेडिसिन का भी आ सकता है, एकेडमिक्स का आ सकता है, इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेस इंडस्ट्री, उनका आ सकता है। तो उसमें फॉर एग्जांपल वो डाटा उन्होंने एक्सेल शीट में एंटर किया हुआ है, तो मैनुअली एंटर करते हैं तो उसके अंदर मिस्टेक्स होती हैं। एक तो ये है कि जब आप उसको लोड करते हैं तो डाटा आपके पास डिजायर्ड फॉर्म में नहीं आता। फॉर एग्जांपल आपके पास जिस तरह हम अभी देखेंगे नंबर ऑफ रिव्यूज एक एप्लीकेशन की, वो आपके पास
कैरेक्टर स्ट्रिंग में आ जाता है। तो आप उस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसकी एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसका डबल कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपको उसको हमेशा पार्स करना पड़ेगा एक मीनिंगफुल डाटा स्ट्रक्चर में, जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो अब मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर इस पे हम मूव करते हैं। ओके, डाटा फ्रेम जब आप लोड करते हैं तो सबसे आसान और कन्वेंशनल वे जो है, आप डीएफ इसके लिए यूज़ करते हैं। इसको नाम, जब आपने मेन डाटा सेट अपना लेना है तो आप उसमें छोटे से छोटा वेरिएबल नेम रखें ताकि आप उसको इजीली बाद में एड्रेस कर सकें। इसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इस वजह से ये बेहतर है कि आप छोटा नाम रखें। अब इसके अंदर एक सेकेंड मैं देख लूँ मैं किस डायरेक्टरी में हूँ। इसके अंदर आर के अंदर गेट डब्ल्यू से वर्किंग डायरेक्टरी आ जाती है। एक्चुअली मुझे डाटा साइंस साइफाई, ओके, यहाँ पे हम आ गए। अब आर के अंदर एक फंक्शन होता है रीड डॉट सी एस वी। इससे आप सी एस वी फाइल्स रीड कर सकते हैं। इससे पहले हम इसको रीड करें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ओके, जब भी हम डाटा को रीड करें ना, उससे पहले बेहतर है कि हम उसको खोल के चेक कर लें। स्पेसिफिकली आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या उस डाटा सेट में कॉलम्स हैं या नहीं है। अब जिस तरह इसके अंदर एक रो है, इसके अंदर कॉलम्स हैं। जब आप डाटा को रीड डॉट सी एस वी से रीड करते हैं तो ये वाली चीज़ तो 100% आपको देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो सही से पार्स नहीं होगा, बाद में आपको कॉलम नेम्स खुद से लिखने पड़ेंगे। तो रीड डॉट सी एस वी में आप उसका नाम लिखेंगे डाटा सेट का। अगर आपने फर्स्ट उसका लेटर भी लिख लिया तो उसके बाद आप टैब दबाएं तो उसको ऑटो कंप्लीट कर देगा। उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर हेडर था, तो हेडर इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, यानी ये फर्स्ट रो को उसके कॉलम नेम्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, ये हमारे पास आ गया। इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास 10,841 रोज एंड 13 कॉलम्स। और ये गूगल प्ले स्टोर का ओपन सोर्स डाटा सेट है, रियलिस्टिक डाटा सेट है कि जो कि रियल गूगल प्ले स्टोर से रिट्रीव किया गया है, कैगल से ये मुझे मिला है। कैगल से आप मजीद इस तरह के कोई भी डाटा सेट आपने देखना हो तो आप वो देख सकते हैं। सर कैगल की लिंक शेयर कर दें। जी मैं कर देता हूँ। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास ये आ गए। अब जब मैंने आपको उस वक्त फंक्शंस बताए थे समरी के स्ट्रक्चर के, तो बेसिकली जब डाटा सेट काफ़ी बड़ा हो जिस तरह ये है, तो स्ट्रक्चर का आपने जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करना है। बड़े से मेरा मुराद ये था कि जिसके अंदर कॉलम्स काफ़ी ज़्यादा हों। तो स्ट्रक्चर का आप इस पे कॉल करते हैं तो आपके पास यहाँ पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन शो हो गई। ये फर्स्ट कॉलम जो है हमारे पास एप्लीकेशन का है, और इसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशंस के नेम्स हैं जो कि उनके ऐप स्टोर के नेम है। उसके बाद हमारे पास कैटेगरी का कॉलम है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसकी टाइप भी दिखा रहा है। तो कैटेगरी हमारे पास करेक्टर है। रेटिंग हमारे पास नंबर है, उसने नंबर उसको पार्स कर लिया। रिव्यूज़ ये हैं 159, आप देख सकते हैं ये करेक्टर में है। तो ये हमारे लिए अनयूजेबल होंगे इस फॉर्म में। लेट्स से हम देखना चाह रहे हैं कि एवरेज रिव्यूज़ एक कैटेगरी में कितने हैं, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप इसको प्रॉपरली पार्स नहीं करते। उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ इंस्टॉल्स हो गए। नंबर ऑफ इंस्टॉल्स भी करेक्टर है, एक तो करेक्टर है, उसके अलावा आपके पास इसमें प्लस का साइन भी आ रहा है। तो ये तो उससे भी ज़्यादा इशू है, इसको आप डायरेक्टली पार्स भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास टाइप है, टाइप भी आपके पास करेक्टर है। प्राइस है, प्राइस भी आपके पास करेक्टर है, जो कि करेक्टर नहीं होना चाहिए ताकि आप प्राइस पे एनालिसिस कर सकें। कंटेंट रेटिंग है, ये करेक्टर है, ये ठीक है। यॉनरा है, यॉनरा भी आपके पास करेक्टर में है। तो इस तरह आप देखते जाएं तो आपके पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि एक्चुअली डाटा सेट में क्या इंफॉर्मेशन है कौन सी। जब आप स्ट्रक्चर से एक बार रीड कर लेते हैं तो आपको पूरे डाटा सेट का आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर किस किस टाइप की चीज़ें हैं और क्या क्या उसके अंदर रो में इंफॉर्मेशन मौजूद है। ओके, तो इससे आगे अब हम मूव करते हैं
बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो गो थ्रू मैं करवा रहा हूँ वो हम सिर्फ डाटा एनालिसिस जो सॉरी डाटा लोडिंग और क्लीनिंग का स्टेप है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बताया कि 60 एटलीस्ट 50 to 60% आपका काम इसी चीज़ पे ही रहेगा। उसके बाद आपने सिंपली अगर आपने डाटा विजुअलाइजेशन करनी है, जब आपके पास डाटा क्लीन हो गया तो आप उसको इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, उस पर मॉडल्स अप्लाई कर सकते हैं मशीन लर्निंग के, डीप लर्निंग के। तो वो चीज़ें ऑब्वियसली हमारे पास टाइम फ्रेम में हम हर चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ जिसको इतना देखा नहीं जाता और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डाटा क्लीन करना आता हो, तो उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम कहाँ पे थी। सबसे पहला इशू हमारे पास था रिव्यूज़ में। जो रिव्यूज़ थे वो हमारे पास करेक्टर थे, उसको हमने न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप सिंपली जो चीज़ इस तरह है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको वैसे दिखाता हूँ, अगर आपके पास एक करेक्टर है इस तरह 159, तो इसको आप एज डॉट न्यूमेरिक, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर अगर आप पुट करते हैं तो ये न्यूमेरिक में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो आप यही काम पूरे कॉलम पे भी कर सकते हैं। तो अगर सीधा सीधा इस तरह का है तो आपके पास कोई इशू नहीं है, आपने सिंपली उस कॉलम को कॉल करना है रिव्यूज़, और उसमें अपने एज डॉट न्यूमेरिक। अब बेसिकली ये लाइन क्या कर रही है कि इसी कॉलम की वैल्यूज लेके उनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर रही है, और फिर जब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, सारी न्यूमेरिक में कन्वर्ट होगी, तो उसको दोबारा अपडेट कर रही है। तो जिस तरह आप ये वार्निंग देख रहे हैं, एन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कवर्जन, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग्स थी। मैंने मिसिंग वैल्यूज पे भी बात करनी है, वो मैंने अभी इसलिए नहीं की क्योंकि जब हम इसको प्रॉपरली इसमें कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एन एज इंट्रोड्यूस होते हैं, और जब एन ए वैल्यूज़ जब आती हैं हमारे पास तो हम उनको एक मेथड से एड्रेस कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि पहले आप उसको अपनी स्पेसिफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, फिर बाद में आप मिसिंग वैल्यूज़ को एड्रेस करें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक टाइप का ना हम ऐसा करते हैं कि एक ही वो लेते हैं ताकि टाइम बचा सकें। उसके बाद ये जो हमारे पास साइज़ है, साइज़ काफ़ी ट्रिकी है कि आपके पास अगर हम इसके अंदर देखें इसकी यूनिक वैल्यूज़, तो आप देख सकते हैं कि बेशुमार इसकी यूनिक वैल्यूज़ हैं। और एक तो ये है कि इसके अंदर m जो है इसका मतलब है मेगाबाइट्स, और k जो है हमारे पास के भी है, तो के है किलोबाइट्स। हम सीधा सीधा इसको उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर एक तो पहले ये कि एक अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो ये एरर दे देगा, उसमें कन्वर्ट नहीं होगा इंटीजर में या फिर न्यूमेरिक में। तो हमने एक तो इसमें से ये रिमूव करना होगा, और दूसरी बात हमने रिमूव करने के अलावा इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि m k के इक्वल नहीं है। जब हमने m और k को हटाना है तो हमने कोई एक स्टैंडर्ड चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हम मेगाबाइट्स में ही पूरे डाटा सेट को रखेंगे, नहीं तो इसमें एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। इसको अगर हम इसको सिंपली k हटा देते हैं तो 201 मेगाबाइट से कंसिडर होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये करेंगे कि हम लेट्स से हमने डिसाइड कर लिया कि हम मेगाबाइट्स में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम के जो है के की इंडेक्स पोजीशंस हम किसी जगह स्टोर कर लेते हैं। तो आर के अंदर एक फंक्शन है ग्रेपल। ये फंक्शन क्या करता है कि एक वेक्टर के अंदर से एक पैटर्न के हिसाब से सर्च करके आपको इंडेक्स पोजीशंस बताता है कि किसके अंदर वो चीज़ है। जिस तरह अगर हम देखें हमारे पास, हम देखना चाह रहे हैं एन, ये हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास इसने इस वेक्टर में से रिट्रीव किया कि उसका फर्स्ट एलिमेंट में एन मौजूद था और सेकंड में नहीं था। इस तरह ये पूरे उसमें से हमें बता देगा कि कहाँ कहाँ पर के है और कहाँ कहाँ पे नहीं है। फिर उसको हम बुलियन इंडेक्सिंग, जिसकी मैंने कल बात की थी, उसको यूज़ करके हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं इंडेक्स के, तो हम डाटा फ्रेम का जो साइज का कॉलम था उसको हम यूज़ करेंगे। एक सेकेंड, पहले हम ग्रेपल का फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा पैटर्न है
के, हमें के चाहिए और हम निकाल रहे हैं वो डाटा फ्रेम के साइज के कॉलम में से। अब अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं तो आप सम यूज कर सकते हैं, क्योंकि सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो ट्रू है उसको 1 कंसीडर किया जाता है और फॉल्स को 0। तो आपके पास 316 वैल्यूज ऐसी हैं जिसके अंदर के है। तो के को इस तरह लेना अच्छी चॉइस थी, क्योंकि 10,000 में से सिर्फ 316 वैल्यूज ऐसी हैं जिसके अंदर हमारे पास जो साइज है वो किलोबाइट्स में है, बाकी सब मेगाबाइट्स में है। तो हम इसको पार्स करके बाद में इसको भी मेगाबाइट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम एक काम करते हैं कि ये जो के हैं और एम है ये सब रिमूव कर देते हैं। इसके लिए एक फंक्शन है grep। ये क्या करता है कि ये एक पैटर्न सर्च करता है और उसके बाद उसको रिप्लेस कर देता है। जिस तरह जी ग्रेपल जो था, सॉरी grep नहीं, जी सब। तो ग्रेपल जो था उसने इसको सर्च किया और बता दिया किस इंडेक्स पोजीशन पे था। ये उस चीज़ को सर्च करेगा रेगुलर एक्सप्रेशंस के हिसाब से और उसके बाद उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस कर देगा। तो अगर हम डाटा फ्रेम के साइज के कॉलम को अपडेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एम हो और ये जो रेगुलर एक्सप्रेशंस में हम ये वाला जो साइन यूज़ करते हैं इसको और कहते हैं, यानी एम हो या के हो तो उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दें। और रिप्लेस हमने कहाँ करना है, डाटा फ्रेम में साइज के कॉलम में। तो अब हम अगर देखते हैं इसकी यूनिक वैल्यूज़ तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ये सब वैल्यूज़ उसमें कन्वर्ट हो चुकी हैं। लेकिन इसमें अब हमारे पास कुछ 293 ये यानी वो वैल्यूज़ थी जिनके अंदर के था, तो हमने इनके इंडेक्स स्टोर किए हैं। अब हम इनको सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें मेगाबाइट्स में। लेकिन ये करने से पहले हमें एक और स्टेप लेना पड़ेगा, वो ये है कि आपको इनको इंटीजर या न्यूमेरिक में पार्स करना पड़ेगा। तो पहले वो करते हैं, क्योंकि ताकि आप इस पे डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें इसको मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए। मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए 1024 से डिवाइड करेंगे तो ये उसमें मेगाबाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डाटा फ्रेम एज न्यूमेरिक, तो जहां मिसिंग थी वैल्यूज वहां पे एन एज इंट्रोड्यूस हो गए। अब हम सिंपली इसके अंदर बुलियन इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जो हमने इंडेक्स अंडरस्कोर के का वेरिएबल लिया था। अब ये क्या इंश्योर कर रहा है कि सिर्फ इन्हीं वैल्यूज पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो, यहाँ पे सिर्फ इन्हीं पे परफॉर्म हो और इन्हीं वैल्यूज को ही अपडेट करना है, बाकी डाटा फ्रेम को वैसे का वैसे छोड़ देना है। तो 1024 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास, अब एक बार फिर हम यूनिक वैल्यूज देखते हैं तो आपके पास ये उसमें कन्वर्ट होगी, एक मैथमेटिकल नोटेशन में आ गई, लेकिन नेवरदलेस ये आपके पास उसमें कन्वर्ट हो चुकी हैं। ओके, हम दोबारा स्ट्रक्चर देखते हैं डाटा फ्रेम का। सबसे डिफ़िकल्ट यही चीज़ थी इसके अंदर, इसमें सब चीज़ें कवर हो गई जो हमने वो की हैं। इसी तरह इसमें से अगर आप इंस्टॉल्स में से प्लस रिमूव करना चाह रहे हैं और कॉमा रिमूव करना चाह रहे हैं तो आपने जिस तरह जी सब का मेथड मैंने अभी दिखाया तो आप वो यूज़ करके इसमें से ये दोनों चीज़ें भी रिमूव कर सकते हैं और प्राइस को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइस में एक और चीज़ होती है कि इसके अंदर डॉलर का साइन होता है, तो आपने जी सब के हिसाब से डॉलर का साइन वो करना है। तो आपने 1 बाय 1 सब कॉलम्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड डाटा स्ट्रक्चर में पार्स करना है। उसके बाद आप उसको उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम सीरीज़ का डाटा हो जिसके अंदर डेट्स होती हैं, जिस तरह ये लास्ट अपडेटेड है, तो इसको भी आप डेट में पार्स करने के लिए फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम एक डेट ले लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आर के अंदर स्ट्रिंग पार्स टाइम का एक फंक्शन है एस टी पी टाइम। में चेक सही भी है या नहीं, क्योंकि पाइथन और आर में दोनों स्ट्रिंग मैट पार्स टाइम, ओके एस टी आर पार्स टाइम।
तो ये वाला फंक्शन अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, जब आप दोनों लैंग्वेजेस यूज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी, बस उनके नेम्स अक्सर डिफरेंट होते हैं। तो आपको एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब यूज़ करना है तो आप उस पर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, बस आपको फंक्शनैलिटी का आइडिया होना चाहिए। तो स्ट्रिंग पार्स टाइम में आप बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट्स चाहते हैं। एक तो जो आपके पास आ, वो स्ट्रिंग है जिसको आप पार्स करना चाह रहे हैं डेट टाइम फॉर्मेट में। डेट टाइम फॉर्मेट में पार्स करने का फ़ायदा ये होता है कि आप उस पर कंपैरिजन कर सकते हैं कि फ़लाँ डेट फ़लाँ से बड़ी है या फ़लाँ से छोटी है, या इससे बड़ी डेट्स निकाल दो या उससे छोटी डेट्स निकाल दो। जिस तरह एसक्यूएल में भी ये चीज़ आपने देखी होगी जिन्होंने एसक्यूएल पे काम किया। इस वक्त स्ट्रिंग की फॉर्मेट में या करेक्टर के फॉर्मेट में ये चीज़ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूजलेस है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसकी लेंथ कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ जो कि सेम है। तो आप इस पे और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लेस देन ग्रेटर देन का नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे आपने फॉर्मेट देनी होती है। फॉर्मेट के लिए कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। परसेंटेज एम जो होता है ये मंथ के लिए आई थिंक कैपिटल एम होता है। उसके बाद स्पेस ये हमारे पास डे है, और परसेंटेज कैपिटल वाई। ये आप इस पे सर्च करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर फुल मंथ है तो उसको परसेंटेज एम कहते हैं। आई थिंक ये मैं गलत भी हो सकता हूँ। बाकी ये दोनों मुझे अच्छे से याद हैं कि परसेंटेज डी और परसेंटेज कैपिटल वाई। तो आपने सिंपली उसी तरह जिस तरह यहाँ पर जनवरी लिखा हुआ है, आपने उसके साथ जो पार्स वाला करेक्टर है, जब गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि फुल मंथ का नेम लिखा हो तो किस तरह आपने करना है। आपने ये कर दिया, उसके बाद परसेंटेज डी जो है स्पेस के बाद वैसे ही आपने एंटर कर दिया, फिर कॉमा आ रहा है, और उसके बाद ये इस तरह आप पूरा वेक्टर जो होता है उसको भी पार्स कर सकते हैं। ये आई गेस परसेंटेज एम मैंने गलत लिखा है, सेकेंड इस पे सर्च कर लेते हैं। परसेंटेज कैपिटल एम मिनट है। ऑलराइट, यहाँ मुझे देखना पड़ेगा, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। बस सिंपली आप इस तरह अगर करते हैं तो आपके पास ये पार्स होके डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेट्स को हैंडल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह मैं भी अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो उसके अंदर पाइथन में मैंने काम किया, तो उसमें डेट्स को पार्स करना बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसी पे ही सब कुछ बेस्ड था। ऑलराइट, आई गेस आपको बेसिक डाटा क्लीनिंग का आइडिया हो गया होगा। आपने अगर यूं देखना है कोई नई चीज़ आ जाती है उस पर घबराना नहीं है, आपने बस ये देख लेना है कि आपने उस चीज़ को कैसे पार्स करना है। जिस तरह डेट आई तो आप देख लेंगे, गूगल पे सर्च कर लेंगे कि हाउ टू पार्स डेट्स इनटू डेट टाइम फॉर्मेट इन आर या इन पाइथन, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं। तो आपके पास उस चीज़ का पूरा ट्यूटोरियल मेथड्स आ जाएंगे। आपने सेल्फ लर्निंग को आगे लेके चलना है, बिकॉज इन सेशंस में 2 घंटे के 1 घंटे के सेशंस में आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता, लेकिन आपको ऑब्वियसली एक डायरेक्शन दे सकता हूँ जिसमें आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं जिसको लेके। ऑलराइट, आई गेस मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया आज, तो मज़ीद आपको नहीं थकाता ना।